میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی زبان کو کیا کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی کنٹرول آور ٹنگ. ہم اپنی زبان کو کس طرح کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں جی، کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے قابو میں کر سکتے ہیں. آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یعقوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت. اور خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. کیا آیت پڑھی ہے میں نے ابھی کیا آیت پڑھی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آیت کیا پڑھی ہے ابھی میں نے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، اگر اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے تو وہ کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ہردے کو دھوکہ دیتا ہے. کس کو؟ ہردے کو، یعنی کہ اپنے دل کو دھوکہ دیتا ہے سب سے پہلے. اور جو زبان ایک جسم رکھنے والی چیز، ایک شخص زبان سے گناہ کر رہا ہے اور دل کو دھوکہ دے رہا ہے تو کیا وہ خدا کی نظر میں کیا ہوگا؟ صحیح ثابت ہوگا؟ نہیں. اب آج کل ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یوحنا کے پاس، یوحنا بپتسمہ دینے کے والے کے پاس جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کیا کر، فقی فریسیوں نے کہا کہ ہمیں بھی بپتسمہ دے. تو اس نے کہا کہ سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتلا دیا کہ آنے والے خوف سے کیا کرو، بچو؟ کہ تمہیں کس نے کہہ دیا آنے والے خوف سے بچو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اندر کو جانتا تھا، وہ ان کے بھیتر کو، ان کے ہردے کو، ان کے من کو جانتا تھا کہ ان کے من کے اندر کیا چل رہا ہے. اب ہماری بیسیکلی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، ہم اپنی روحانی زندگی میں ایک سانپ کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کنے لوگوں نے سپ نوں رنگدے ہوئے دیکھا ہے تے بل چ جاندے کنے دیکھا ہے؟ تے بل چ کہیں جاندہ سپ سیدھا رنگدا نہیں، تو بل آندی تے سٹریٹ ہو جاتا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم پورا دن اپنی زندگی میں، پورا ہفتہ چرچ جانے سے پہلے ہم مختلف قسم کی ایپ جوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کے مل کے برائیاں کرتے ہیں، خدا کو بھی یہاں تک کہ برا بھلا کہتے ہیں. مگر جیسے ہی سنڈے کا دن ہوتا ہے یا کوئی میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو بائبل اسی کچھے مارنے ہیں تو گھر کہہ دینے ہیں ہم جا رہے ہیں کہاں پر، عبادت پہ جا رہے ہیں. تو اتنے جا کے کرنے کی ہیں، پہلے رنگتے جانے ہیں رستے چ، وہ 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، پادری نے ہوں اگے جاندیا بولنا، خادم نے آ کرنا ہے، وہ بندہ اتنے مینوں نہیں پسند، انہوں کہنا میری کرسی تے نہ بہے، اتنے وہ باجی نہیں پسند، تالی بڑی زور دی مارتی ہے. رنگتے تے جویں ہی چرچ دے دروازے دے وچ وڑنا تے جانا نا اینج سٹریٹ سیدھا اینج بائبل اتنے بالکل بائبل کے اندر خدا دا مسا آندا ہے، اتنے انجوائے کرتے ہیں، دعا کرنے، انجوائے کرنے ہیں، خدمت کرنے ہیں، عبادت کرنے ہیں، کلام سننے ہیں، اور اتنے بڑا ہی جوش نہ بھر جانے ہیں. اور جویں باہر نکلنے ہیں تو پھر واپس وہی ساری روٹین ہو جاتی ہے، کدی کھبے کدی سجے، کھبے سجے کر دے. وہ پادری نے کلام بہت لمبا سنا چھڈیا، وہ باجی نے ویلا گواہی دیتی، انہیں گواہی نہیں مینوں پسند آئی، انہوں انج نہیں سے کہنا چاہیے، انہیں انج کیتا، انہیں انج کیتا. ہماری زبان کیا کرتی ہے، ہمیں کیا ٹھہراتی ہے، مجرم. اب ہمارا کام کیا ہے، یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے. اب اپنے آپ کو دیندار سمجھنے سے کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے وسیم بھائی ہیں یہاں پر
कहते नहीं जी मैं बड़ा दीनदार हाँ। दीनदार से मुराद कि मैं बड़ा ही दुआ गुजार हूँ, मैं बड़े खुदा के नेक काम करता हूँ। मगर अगर थोड़ा जिहा घर च मसला हो गया तो वसीम साहब ने 2 बीवी नूं थप्पियां दे दित्तियां, गुस्से दे विच फड़ के ते इंसाइड ते कर दिता, या कोई ऐसे लफ्ज़ बोले जिहड़े उहदे लई की होए ने बर्दाश्त तो बाहर ने, तो फिर की हुंदा कि तुसीं खुदा की नज़र दे विच दीनदार हो? क्या खुदा की नज़र में दीनदार है? अब हम इसको अहद अतीक में जब देखते हैं तो बलाम के बारे में कौन कौन जानता है? बलाम के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? कोई बता सकता है बलाम कौन था? बलाम करने क्या जा रहा था? बलाम एक ऐसा शख्स था जो क्या करता था? कर्स करता था। कर्स समझते हैं? किसी नूं ना लानत करना, किसी के उत्ते बददुआ देना किसी को। तो बादशाह ने उसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाके किंदे ते बददुआ करनी है? इसराइल ते। किंदे ते? इसराइल ते जाके की करनी है? बददुआ करनी है। तो वो निकल गया रस्ते च, उन्हें कहा अज जाके मैं बददुआ करांगा इहदे उत्ते। जदों रस्ते से जा रहा और अपनी गद्दी के ऊपर वो जा रहा तो क्या हुआ कि रास्ते में उसकी गद्दी एक जगह पर जाकर रुक गई। वो खुदा के लोगों को क्या करने जा रहा था? बददुआ देने, उन पर लानत करने जा रहा था। और उसके बारे में कहा जाता था वो जिस कौम पर लानत करता था या जिस शख्स पर लानत करता था वो लानत जो थी वो बरकरार रहती थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि उनके साथ जिंदा खुदा। वो खुदा के लोगों के लिए लानत करने को निकला और जब रास्ते में वो अपनी गद्दी के साथ गद्दी के ऊपर सवार था तो रास्ते में एक जगह पर जाकर गद्दी रुक गई। अब गद्दी रुक गई और गद्दी आगे ना जाए, उन्हें उन्होंने मारिया, उन्हें उन्होंने खिंचिया, उन्हें उन्होंने धरूया, उन्हें क्या उन्हें अगे तो क्यों नहीं जाती? वो डरे, वो पीछे को मुड़े। वो जवान बंदा उन्होंने कहे तू पीछे क्यों मोड़नी है, अगे जा, ओए आगे जा, मैंने जाकर उनको कर्स करनी है, मैंने उन पर लानत करनी है, तो क्यों मेरे काम को क्या करती है? खराब करती है। तो आखिर की होया शान साहब? गद्दी नूं आवाज़ नहीं लगी। हालेलुया। गद्दी नूं आवाज़ नहीं लगी क्योंकि उन्होंने यीशु से कहा, जब वो शहाना दाखिला उसका यरूशलेम में हुआ तो उन्होंने कहा कि इनको कहो शोर मत करें। तो उसने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। खुदा कुदरत रखता है। उसने उस गद्दी को जुबान दे दी, परेशान हो गया। वो तेरा पड़ा गद्दी किमें बोलना शुरू हो गई। इतना बड़ा शख्स, अपनी तरफ से इतना दना शख्स, इतना ताकतवर शख्स, क्या सोचता होगा वो एक जानवर बोल गया। उसने उस वक्त भी कुदरत को ना पहचाना। फिर गद्दी ने कहा मेरे सामने फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा है। फिर जब उसने देखा कि सामने फरिश्ता नंगी तलवार रख के खड़ा तो फिर वो डर गया, उसके अंदर खौफ तारी हो गया। अगर मैं कर्स करता हूँ अपनी जुबान से तो कोई ऐसा भी है जिसने जुबान से कह दिया कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, और उसके कहने पर बाप ने उन्हें माफ कर दिया। अगर कोई गुनाह को मुंह से निकालता है, कर्स को मुंह से निकालने की कुदरत और ताकत रखता है, तो एक वो भी है जो बोलने से निजात देता है। और उसने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो यीशु नासरी हमें जुबान पर काबू करना सिखाता है, मगर कब सिखाता है? जब हम उसके साथ चलना चाहते हैं। आज हम चर्चिज में जाते हैं, इबादत खानों में जाते हैं, मगर हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती। हमारी जुबान, हमारा हृदय हमारा साथ नहीं देता। हम अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। अगर किसी से पूछ लिया जाता है कि ये बात कैसे है, तो आपके मुंह पर कह देगा, ये कह देगी कि ये ठीक है, मगर वो पूरे तौर पर अपने आप को खुदा को नहीं देंगे। अपनी जुबान से ये नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि इस वक्त ये हमारा कहना जरूरी है। कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु ने कहा कि इब्ने आदम के बारे में भी कहा गुनाह माफ कर दिया जाएगा, मगर रूहुल कुदस के बारे में कोई भी बात कही माफ नहीं की जाएगी। उससे मत डरो जो तुम्हारे जिस्म को खत्म करता है, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारी रूह
और जिस्म दोनों को खींच कर जहन्नम में ले जाएगा, और वो कोई नहीं बल्कि हमारा यीशु नासरी है। आज जरूरत ये है कि हमने अपनी जुबान को देखना। और अब जुबान पर गुनाह कैसे आता है? क्या सिर्फ जुबान इसमें जो सजा के लायक है? कहां से आता है गुनाह? हमारे अंदर से आता है। हमारे कहां से आता है? अंदर से आता है। हमारे दिल ने एक बात को सोचा होता है, हमारी आंखों ने एक चीज को देखा होता है, हमारे दिल ने इस बात की कमिट कर ली होती है कि जब मुझे ये कोई सवाल करेगा या करेगी तो मैं इसको ये जवाब दूंगा या मैं इसको ये जवाब दूंगी। हम इब्लीस के ताबिया हो जाते हैं। आज हमने ये सीखना है कि जुबान पर गलत लफ्ज आते कैसे हैं। जब दाऊद ने गुनाह किया तो दाऊद ने क्या किया? हत्तीऔर की बीवी को नहाते हुए देखा और दाऊद के जहन में गुनाह आ गया। अब जब उसकी आंखों ने देखा तो क्या उसी वक्त मुंह पे गुनाह आ गया होगा? जुबान पे नहीं, उसके अंदर, उसके दिल के अंदर क्या हुआ? गुनाह आ गया। उसके दिल के अंदर, उसके हृदय में, उसके मन में क्या हुआ? गुनाह आ गया। तो उसने अपनी जुबान से पता क्या गुनाह किया? कोई बता सकता है क्या किया था दाऊद ने? जुबान से उसने क्या ऐलान किया था? दो बातें उसने कही थी। एक तो उसने कहा था कि जाओ हत्तीऔर की बीवी को क्या करो? मेरे पास ले आओ। एक पहला ये गुनाह, और दूसरा गुनाह जो ना माफ करने वाला था, उसने कहा कि हत्तीऔर को वहां पर ही मरवा दो। उसने अपनी जुबान से क्या किया? मौत को मांगा किसी के लिए। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? जुबान के हाथ में है। और जो इसको काबू में रखता है इसका फल खाता है, और जिसको काबू में नहीं रखता वो एक दिन जरूर अदालत में पेश किया जाएगा। जो इसको काबू में नहीं रखता। आज जरूरत है कि दाऊद ने जब उसके साथ ज़िना कर लिया तो दाऊद ये जानता था कि एक बकरे की कुर्बानी देने से, एक मेंढे की कुर्बानी देने से, रुपया पैसा सोना चांदी देने से मेरा गुनाह माफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता? क्योंकि गुनाह बाहर से नहीं, गुनाह अंदर से निकला। जब यीशु मसीह को उन्होंने पूछा कि तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते, ते हाथ धोए बगैर रोटी खाते ने, तो यीशु ने कहा कि जो कुछ चीज़ तुम्हारे अंदर जाती है वो तुम्हें नापाक नहीं करती, बल्कि जो बाहर आती है वो नापाक करती है। वो तालीम के बारे में बता रहा था कि दो तरह की तालीम तुम्हारे अंदर जाती है, मगर जो तालीम बाहर आती है हमेशा वो तुम्हें गुनहगार या एक अच्छा शख्स ठहराती है। आमीन। दाऊद ये जान गया था कि गुनाह दिल से हुआ है, गुनाह अंदर से हुआ है। हालांकि वो बादशाह था, क्या कोई उस पर गुनाह साबित कर सकता था? कोई बता सकता है कि दाऊद में कोई गुनाह साबित कर सकता था? कोई नहीं कर सकता था। अगर कोई उसके पास आता तो वो उसको कहता कि तेरी क्या जरूरत है, तू मुझ पे गुनाह साबित कर दे। मगर वो जानता था कि मैं पताल में भी चला जावांगा, मैं बियाबाना च भी चला जावांगा, मैं अंधेरे रास्ते च भी चला जाऊंगा। तो कहता कि मैं पताल च भी चला जाऊंगा तो खुदा तो उतों भी मैंने खिंच के बाहर कटेगा। वो जानता था कि अगर उसका हाथ मुझे पताल में खींच के बाहर निकाल सकता है तो अगर मैं गुनाह करूंगा तो वो पताल में से भी मुझसे हिसाब ले लेगा। हालेलुया। तो उसने खुदा से मन्नत की। उसने कहा कि ना ये सोने से ना चांदी से पाक हो सकता हूँ, ना मैं किसी मेंढे की कुर्बानी से पाक हो सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने गुनाह किया है वो मेरे अंदर से आया था। अगर बाहर से होता तो शायद मैं बच जाता। और उसने कहा कि तू मेरे दिल को क्या कर दे? पाक कर दे। उसने कहा मेरे मन को नया बना दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, मुझे अंदर से पाक और साफ कर दे, क्योंकि खुदा मैंने तेरी हजूरी में गुनाह किया है। आज जब भी आप चाहते हैं कि आपकी जुबान काबू में रहे, आप कोई ऐसी बात ना करे जो रूहुल कुदस के खिलाफ हो, आप कोई ऐसी बात ना करे जिससे किसी इंसान को ठेस पहुंचे, आप कोई ऐसी बात ना करे जिससे किसी इंसान का ईमान जाता रहे। तो आज जरूरी है कि आप अपने हृदय को साफ करें। और उसको साफ करने का तरीका क्या है कि कोई इंसान आपकी जुबान को काबू नहीं कर सकता, कोई
कोई शख्स आपकी जुबान को काबू नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही रूहुल कुद्स है जिसके बारे में बताया गया कि वो आएगा और बाप और मेरे दरमियान की बातें, भीतर की बातें वो तुम्हें बताएगा, और जब वो आएगा तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज जो आपकी जुबान है, अगर आप चाहते हैं कि आपके काबू में रहे तो आप पहले अपने हृदय को साफ करें, और इस हृदय को कोई साफ नहीं कर सकता सिवाय यीशु नासरी के, सिवाय उसके रूहुल कुद्स के अलावा इसको कोई साफ नहीं कर सकता। आज जरूरत है कि उसकी हुजूरी में आ जाए और उससे कहें कि मैं अपने आप को तेरे आगे सिलेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे आगे सिलेंडर करती हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, क्योंकि मैं तेरे यीशु नासरी में इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, इस बात के लिए तेरी शुक्र करती हूँ क्योंकि तू उस बाप को, खुदा बाप को बाप कहता है। और गलीतियों की किताब में पौलुस रसूल कहता है कि हम बाप तेरे बेटे यीशु का शुक्र करते हैं जिसने कुर्बानी देकर, जो तुझे बाप कहता है, और कुर्बानी देकर उसने हमें अपने खून से खरीद लिया, अलग होने का उसने मौका दिया, जिसका मतलब है कि ऐ बाप, जिस तरह वो उससे ऐ बाप कहता है उससे हमें भी मौका दिया कि हम भी तुझे ऐ बाप कहकर पुकार सके। क्या पुकार कर सके? क्या कर? ऐ बाप कहकर तुझे पुकार सके। आज ये जुबान जो गुनाह करती है, आज ये सिर्फ जुबान का कसूर नहीं है, अगर इससे काबू में रखना है तो आपको यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों के 2 बाब में वाज़िह तौर पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। और अगर खुदा का रूह तुम में है तो आगे ये बात लिखी है कि अगर तुम इस मक़दस को बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये नहीं है कि अगर आप अच्छे काम नहीं करते तो आपको वही बुरे भी नहीं कर दे तो खुदा सानू छाड़ देगा। नहीं, वो आपके अंदर रहना चाहता है, वो आप में से नजर आना चाहता है। वो कहता है मैंने एक लंगड़े को चलाया, मैंने अंधे को आंखें दी, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम रूहों को जीतोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या किया है? इख्तियार दिया है। वो पतरस जब उसने आखिरी बात के साथ ख़त्म करूँगा, वो पतरस जब उसने 3 बार इनकार किया, तो जब उसने 3 बार मुड़ के भांग देने से पहले यीशु मसीह का इनकार किया, तो यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि यीशु जिंदा होने के बाद जब उससे मिला, तो जब वो इकट्ठे बैठे थे तो यीशु ने से कहा कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है? तो उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। उसने फिर दूसरी बार उससे पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। फिर उसने तीसरी बार उससे पूछा कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है? तो उसने कहा खुदावंद तू ही जानता है। अब यीशु ने ये क्यों उससे 3 बार कहा? क्योंकि यीशु ने उसके वो लानत जो कर्ज उस पर आ गई थी, वो खौफ जो डर उस पर तारी हो गया था, कि उसने खौफ के, मौत के खौफ की वजह से 3 बार मुड़ के भाग देने से पहले जब इनकार किया था, तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया तो उसने कहा कि पतरस इसी जुबान से जो तेरे लिए लानती ठहरी, जिसकी वजह से 3 बार तूने मेरा इनकार किया, अब तू 3 बार मेरा इकरार करेगा। जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो अगर आप जितने भी मर्जी गुनाहगार हैं, आप जितने भी परेशान हैं, तो आपने अपनी जुबान से जितनी पहुंचाई है, आपने जो कुछ किया है, आपने जो भी गलतियां अपनी जिंदगी में की हैं, जो कुछ आपने गलत कर दिया अपनी जिंदगी में, वो खुदा आपकी जिंदगी से खत्म कर देगा। और जब आप जिस जुबान से आपने इनकार किया था, जब उसी जुबान से आप उसके कलाम को सुनाएंगे, इकरार करेंगे, तो वो आपको जरूर है कि यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। यीशु का आपकी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। और जब वो आपकी जिंदगी में आ जाता है तो मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। आज अगर आप में से कोई अपनी जुबान को काबू में रखना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि आपकी जुबान काबू में रहे, तो अपने आप को पूरे तौर पर क्या करें? अपने आप को मसीह को दे दो, अपने आप को मसीह को दे दे पूरे तौर। अब कहें कि ये मेरी जुबान है, मेरी नहीं, आज से ये तेरी रहे। ये हृदय मेरा नहीं, आज से ये तेरा है। ये दिल मेरा नहीं,
कलाम में लिखा है कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया, इसमें तू अपना घर बना ले, इसलिए तूने क्या किया, इसे बनाया। अगर आप में से कोई चाहता है कि आप बुरे अल्फाज ना बोलें अपनी जिंदगी में, आप किसी के लिए ठेस ना पहुंचाने वाले आपके अल्फाज हों, तो आप पूरे तौर पर अपने आप को मसीह को देंगे। जितने लोग तैयार हैं आज अपने आप को अपनी जुबान के साथ, अपने हृदय के साथ पूरे तौर पर मसीह को देने के लिए, वो अपने हाथों को बुलंद करें कि अगर जुबान एक छोटा साजू है मगर ये पूरे जंगल को जला कर राख कर देती है, मगर अगर आप उस यीशु मसीह की जुबान को देखें जिसने हमेशा माफ किया, जिसने कोड़ियों से दूर खड़े हुए ही कहा कि जाओ तुम्हारा कोड़ जाता रहे, उनका कोड़ जाता रहा, जिसने संदेह से कहा कि जाकर शलोक में धो ले, तो जब उसने धोया उसकी आंख बन गई, जिसने उस 4 दिन के मुर्दा लाजर से कहा कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, वो कब्र से बाहर आ गया। वो कहता है तुम मुझे पूरे तौर पर अपने अंदर ले लो। अगर आज आप उसको पूरे तौर पर अपने अंदर ले लेंगे तो वो आपकी जुबान बन जाएगा, फिर आपकी जुबान से कोई गुनाह नहीं निकलेगा, कोई गलत बात नहीं निकलेगी जो किसी को ठेस पहुंचाएगी। आज उसका रूह ये बात करता है कि अपने आप को पूरे तौर पर उसके सामने आता है, वो आपको निजात दे, वो आपको सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर निजात दे, वो आपको आजाद कर देगा।